ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ کورونا کی روک تھام کے پیش نظر پوری ریاست میں نافذ ہے کرفیو اور دفعہ 144، اس لیے بندگان توحید سادگی سے منائیں عید الفطر۔ خواتین اور بچے بھی بازار جانے سے کریں گریز، علماء کرام کی اپیل۔ کورونا کو مات دینے والے مریض ہو سکتے ہیں بلیک فنگل انفیکشن کے شکار، علامہ ظاہر ہوتے ہی کروا لیں علاج، میونسپل ہیلتھ آفیسر نے دیا شہریان کو مشورہ۔ MLC امبرداس دانوئی کی کوششوں سے بجاج نگر علاقے میں نصب آکسیجن پلانٹ کا ہوا شاندار افتتاح، مگر سول ہاسپٹل میں آکسیجن پلانٹ شروع نہ ہونے سے BJP قائدین ناراض۔ اور کورونا سے بچاؤ کے لیے ضلع میں زور و شور سے جاری ہے ویکسینیشن مہم، اب تک کم و بیش 5 لاکھ شہریان کو لگا دیے گئے ٹیکے۔ میونسپل حدود کے لیے بھی موصول ہو چکا ہے کوٹا، مگر شہریان نہ کرے بھیڑ۔ خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، آج ساری دنیا کورونا جیسی مہلک وبا سے پریشان ہے۔ ہماری ریاست بھی اس مرض سے متاثر ہے، لہٰذا حکومت مہاراشٹرا نے پوری ریاست میں اس مرض کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 اور کرفیو نافذ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے سبھی بازار بند ہیں۔ لیکن اب بھی کئی لوگ رمضان عید کی خریدی کے لیے بازاروں کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لہٰذا علماء کرام نے بندگان توحید سے اپیل کی ہے کہ خدا را حکومت کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے ماہ رمضان میں کی گئی اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں اور اس سال عید الفطر سادگی سے منائیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عید الفطر قریب آ رہی ہے اور اس سال پچھلے سال سے زیادہ کرونا وائرس جو عالمی وبائی مرض بن چکا ہے اور پوری شدت کے ساتھ ہمارے دیش میں اس کی لہر آئی ہے۔ 4 لاکھ کے قریب روزانہ پیشنٹ آ رہے ہیں اور 4000 کے قریب موتیں ہو رہی ہے، لیکن ہم جو ہے نیند سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ بازاروں میں ہماری بہنیں، ہماری خواتین جو ہے تو برابر جا رہی ہے، جس سے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور یہ ہدایات جو انتظامیہ ڈاکٹرز نے دی ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہماری ملت کی رسوائی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ میرے کو بہت افسوس ہے اخبارات میں دیکھ کر کہ ہماری بہنیں جوق در جوق بازاروں میں جا رہی ہیں، بند شٹروں کے اندر بیٹھ کر خریدی کر رہی ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ان حالات میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں صحت اور تندرستی اہم چیز ہے۔ اگر کسی بہن کو یا بیٹی کو ہمارے وائرس لگ گیا اور پورا گھر اس سے تباہ ہو جائے گا، اپنی جان کی حفاظت کرنا اور دوسروں انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا ہماری بہنوں سے کہ وہ بازاروں میں دکانوں پر بھیڑ نہ لگائیں۔ جو گھر میں اچھے کپڑے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عید کے دن پہننا چاہیے۔ نئے کپڑے کا کسی بھی حدیث و قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میری درخواست ہے میری ماں بہنوں سے کہ اللہ کے واسطے آپ باعث رسوائی ملت نہ بنے، ورنہ انتظامیہ اگر کچھ اس پر ایکشن لیں گا تو اس سے ہم سب کی بدنامی ہوں گی۔ انتظامیہ بہت تعاون کر رہا ہے، ہمارے ساتھ نرمی کر رہا ہے، لیکن اوپر سے اس بیماری کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی کارروائی ہوئی تو ہم سب کو رسوا ہونا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں رمضان المبارک میں یہ 2 دن رہ گئے کہ اللہ ہم سب کو عید کی خوشیوں میں شریک رکھے اور اس مہاماری وبائی عالمی مرض سے ہم سب کو شفائے کاملہ دے، ہمارے دیش کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہر اور ہماری بستیوں کو محفوظ رکھے۔
मेरी बहनों को और हम सबको अल्लाह नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोरोना को मात देकर सेहतयाब होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन पाया जा सकता है, लिहाजा इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होते ही फ़ौरन माहिरीन से रब्ता कायम करें और अपना इलाज करवाएं। ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान से की है। शहरामध्ये सध्या वॅक्सिनेशन सुरू आहे, आपल्याला वॅक्सिन मिळालेलं आहे. तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक वॅक्सिन घेत आहेत. या आपण अबव 45 सुद्धा देतो आहे आणि 18 ते 44 जे 6 बूथ आहेत की जिथे आपल्याला फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन सुरू आहे. तर नागरिकांना सर्व आव्हान आहे, पण वॅक्सिन ज्या प्रमाणात उपलब्ध होते आपण तितकेच बूथ ॲक्टिवेट करतो. साधारण आता आजचे 27 ते 28 बूथ होते. जेवढे काही वॅक्सिन शिल्लक असेल तेवढं आपण त्या प्रमाणात उद्या वॅक्सिनेशन करणार आहोत. तर नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. फक्त आव्हान हे की बूथवर कोणी गर्दी करू नये. आम्ही प्रत्येक माहिती ही त्या प्रेसमध्ये देत असतो, पेपरमध्ये कुठले सेशन आज सुरू आहेत त्याची माहिती असते, त्यानुसार यावं आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून या, म्हणजे गर्दी होणार नाही आणि सगळ्यांना वॅक्सिन मिळेल. कोविड रुग्ण आपले हळूहळू कमी होत आहे आणि पण जे काय सर्वच म्हणजे देशामध्ये इतर ठिकाणावरनं पण आणि इतर गावातले म्युकरमायकोसिस जे फंगल इन्फेक्शन म्हणतो आपण ब्लॅक फंगल, त्याचे काही रुग्ण शहरातही आढळून येत आहेत. ह्याच्यात घाबरून जाण्याचं कारण नाही, पण हे जर का ते झालं तर ते तीव्र स्वरूपाचं असतं आणि खूप स्प्रेड फास्ट असतो. यासाठी याची वेळीच दखल घेणे खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये हे फंगल इन्फेक्शन पहिले नाकातनं सुरू होतं आणि ते जर का वेळेत ट्रीट नाही केलं तर आपले जे सायनसेस असतात, चेहऱ्याची जी हाडं आहेत तिथेही पसरतं. त्यानंतर डोळ्यापर्यंत जाऊ शकतं आणि मेंदूतही जाऊ शकतं. या पद्धतीने हे फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होतं. यामध्ये लक्षणं मुख्य म्हणजे आपले चेहऱ्याचे हाडं दुखणे, दात ढिले होणे, डोकं खूप दुखतं, डोळ्याच्या बाजूचे हाडं सर्व दुखतात आणि डोळ्यावर सूज येणे, नाकावर पण सूज येणे, चेहऱ्यावर सूज येणे या पद्धतीची लक्षणं दिसतात. तर अशी कोणाला लक्षणं आढळली तर त्वरित ENT स्पेशालिस्ट, नाक कान जे तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत ते आणि डोळ्याचे डॉक्टर प्लस डेंटिस्ट यांना दाखवावं. त्वरित त्याची तपासणी करावं आणि त्याचा इलाज केला हा आजार पुढे पसरत नाही. आणि जर दुर्लक्ष केलं तर आजार पसरल्यावर तो डोळ्यात जाऊन डोळा काढायची पण वेळ येऊ शकते. ह्याच्याने अंधत्व येऊ शकतं. तसंच मेंदूतही हा आजार पसरण्याची शक्यता असते. मेंदूत आजार पसरला तर खूप जास्त गंभीर होतो. घाबरून न जाता ही लक्षणं दिसली तर त्वरित तुम्ही डॉक्टरांकडे दाखवा आणि त्याचा उपचार करा. मैडम ये डिसीज़ कंटेजियस है या ऐसा कुछ नहीं? हा कंटेजियस नाही. ज्या लोकांची प्रतिकारशक्ती कमी झालेली आहे आणि यामध्ये जे रुग्ण आढळून येतात ते मुख्यत्वे सगळ्यात त्यांना डायबिटीस आहे, मधुमेह आहे आणि कोविडचा पण आजार बऱ्यापैकी क्रिटिकल झालेला असतो. त्यांना स्टिरॉइड्सची पण मात्रा दिली गेलेली असते, ऑक्सिजन दिलेले गेले, अशा रुग्णांना ते जास्त आढळून येत आहे. तर या पद्धतीत त्यांची हे होते प्रतिकारशक्ती कमी, त्यांच्यात हा आजार दिसतो. हे कंटेजियस नाही, एकापासून दुसऱ्यांना होत नाही. पण लक्षणं आढळल्यावर दुर्लक्ष न करता ताबडतोब तज्ञांना दाखवणे अपेक्षित आहे. MLC अंबादास दानवे की कोशिशों और जानकी देवी बजाज फाउंडेशन के ताउन से बजाज नगर इलाके में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। कोरोना की दूसरी लहर पूरी ताकत के साथ हमलावर हुई थी, जिसकी वजह से कोरोना मुतासरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया था और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड कम पड़ने लगे थे। दवाखानों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने लगी थी। लिहाजा MLC अंबादास दानवे इस मसले को हल करवाने आगे आए और उनकी कोशिशों के बाद जानकी देवी बजाज फाउंडेशन के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया, जिसका इफ्तिताह जानकी देवी बजाज फाउंडेशन ट्रस्ट के नायब सदर PC त्रिपाठी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे के अलावा जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, बजाज ग्रुप के अभय पत्की, जिला परिषद के अविनाश गलांडे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उल्हास दंदाड़े, डॉक्टर विवेक कामले, डॉक्टर उज्ज्वल चौहान और दीगर मौजूद थे। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत औरंगाबाद ज़िले में तकरीबन 1 लाख अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है।
डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा आदोदुशुमार के मुताबिक कोरोना की वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 10 मई को पहले और दूसरे डोज लगवाने वाले साकिनान की मजमूई तादाद 11,119 रही, जिसमें ज़िले के कस्बों व मुआज़ात में 815 अफराद ने और शहर की हदूद में 10,304 शहरियान ने कोरोना के टीके लगवाए हैं। इस तरह 10 मई तक देही इलाकों में मजमूई तौर पर पहला डोज लेने वालों की अब तक की तादाद 1,92,978 और दूसरा डोज लगवाने वालों की तादाद 28,839 रही। यानी पहला व दूसरा डोज लगवाने वाले देही साकिनान की जुमला तादाद 2,21,817 हो गई है, जबकि म्यूनसिपल हदूद में 2,01,615 अफराद ने पहला और 64,843 शहरियान ने दूसरा डोज ले लिया है। इस तरह शहर के मजमूई तौर पर 2,66,458 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यानी 10 मई तक शहर व ज़िला भर के जुमला 4,88,275 अफराद का कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। पुलिस और हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहें वज़ा न की जाएं, बल्कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें एडवांस इंक्रीमेंट जारी किया जाए। इस तरह का एक मकतूब MP इम्तियाज़ जलील ने रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस अजीत दादा पवार के नाम रवाना किया है। इस ज़िम्मन में एक प्रेस नोट MP दफ्तर से जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की मदद के लिए रियासत के सभी सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन और गेजेटेड ऑफिसर्स व अहदेदारान की 1 या 2 दिन की तनख्वाह वज़ा करके CM फंड में जमा करवाई जाएगी। MP इम्तियाज़ जलील ने इस ज़िम्मन में एक मकतूब रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला व वज़ीर मालियात अजीत पवार के नाम रवाना किया है, जिसके ज़रिए यह मुतालबा किया गया कि कोरोना की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन ड्यूटी अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजिमीन, पुलिस एम्प्लॉइज़ और दर्जे चारों के मुलाजिमीन की तनख्वाहें न काटी जाएँ। इसके बरक्स उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें एडवांस इंक्रीमेंट जारी किए जाएँ। महाराष्ट्र राज्य राजपूत महासंघ की जानिब से कैनाट इलाके में जय राणा डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह MLC अंबादास दानवे के हाथों किया गया। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के मौके पर कनाट में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह उनके जन्मदिन की मुनासिबत से महाराष्ट्र राज्य राजपूत महासंघ की जानिब से कनाट में जय राणा डिस्प्ले लगाया गया, जिसकी रुनमाई MLC अंबादास दानवे के हाथों की गई। इस मौके पर महासंघ के अहदेदार विश्वनाथ राजपूत, गोपाल कुलकर्णी, फूल सिंह राजपूत, प्राजक्ता राजपूत, रेखा काकरवाल, चंदा राजपूत, अमूल खड़से, रेखा काकरवाल, सरिता राजपूत, कन्हैया राजपूत, शंकर ठाकुर, बलराम राजपूत, संदीप आंधळे, लक्ष्मण तेलंग, सोनू उबाळे, सुयोग जायसवाल, कुंदन राजपूत और दीगर मौजूद थे। नुसतं शूरवीरच नव्हे तर महापराक्रमी महाराणा प्रतापांची आज जयंती आहे। तर कोविडच्या धर्तीवर ही जयंती दरवर्षी मोठी रॅली निघत असते, मोठा उत्साह असतो, परंतु सरकारचे नियमसुद्धा पाळणं सगळ्यांना बंधनकारक आहे। परंतु आज शेकडो वर्षानंतर सुद्धा जी हळदी घाटीत गाजलेली तलवार ही आजही समस्त हिंदू जनांच्या मनात रुजलेली आहे। आणि हळदी घाटीतली ही महाराणा प्रतापांची ज्याला चमकती तलवार म्हणता येईल, हिची धार आजही तेवढी ताकदवान या हिंदुस्थानामध्ये सगळीकडे आहे। आणि मला वाटतं महाराणा प्रतापांनी स्वराज्य प्रेमाचा, राष्ट्रप्रेमाचा जो नमुना त्या काळात घालून दिलेला आहे की स्वतःचं बलिदान त्यांनी केलं, गवत खाऊन त्यांनी जीवन जगलं, परंतु आपला राज्य, आपला राष्ट्र याचं कधी त्यांनी समोरच्या समोर लोटांगण घातलं नाही, शेवट पण लढा दिला। वाटतं हा विचार आजच्या काळात सुद्धा सगळ्यांनी रुजवण्याची, घेण्याची गरज आहे असं मला वाटतं। आम्ही या निमित्तानं समस्त बांधवांना महाराणा प्रताप जयंतीच्या शुभेच्छा देतो। ओके। आज हिंदू सूर्य शूरवीर महाराणा प्रताप यांची 481वी जयंती आहे आणि आज या जयंतीनिमित्त आज आम्ही सर्व राजपूत समाज बांधव, महिला कार्यकर्णी आणि बांधव थोड्याच संख्येत इथे आलेलो आहोत, कारण की आज प्रशासनाने जे नियम कोरोना संबंधित जे लागू केलेले आहेत
त्यांचे पालन करण्यासाठी आणि थोडक्यात जयंती साजरी करण्यासाठी इथे अभिवादन करण्यासाठी आम्ही सर्वजण इथे आलेलो आहोत. तर राजपूत समाजाच्या सर्व बांधवांना मी प्राजक्ता राजपूत, रेखाताई काकरवाल, चंदाताई राजपूत, अनुसयाताई राजपूत, सरिताताई राजपूत यांच्याकडून सर्व माझ्या संभाजीनगर शहरातील सर्व राजपूत बांधवांना मी आजच्या दिवशी या जयंतीनिमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. जय राम. हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा. हालांकि इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है. इसके बावजूद ये नन्हे मुन्ने बच्चे भूख और प्यास को मात देकर रोज़े रख रहे हैं. इलाका चिकल थाना के साबिक कारपोरेटर सोहेल शेख की 8 साल लड़की उम्मे कुलसूम ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने की सआदत हासिल की. लोटा कारंजा की साकिना 5 साल शेख अदीबा अंजुम शेख आसिफ ने भी मजहब इस्लाम के अहम रुकन रोज़ा रखने की सआदत हासिल की. फरहतनगर औरंगाबाद की 7 साल तकदीस नासिर खान, मकसूद कॉलोनी के 7 साल शेख मुदस्सर शेख वाजिद, फरहतनगर की 7 साल महरूश नासिरुद्दीन नाइकवाड़े और शहर के दीगर कई नौनिहालों ने रब्बे इलाही के अहकामात की पाबंदी करते हुए अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा. हम इन बच्चों के इस जज्बे ईमानी पर उन्हें और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि इन मासूम रोज़ादारों की इबादतों के तोफ़ैल इस दुनिया से कोरोना जैसे खबीस मर्ज़ का ख़ात्मा फरमाया और सारे आलम के इंसानों को अमन व सुकून और सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमा. मैंने रोजा रखा है या अल्लाह तेरा शुक्र, 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 मैंने रोजा रखा है या अल्लाह तेरा शुक्र. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के औरंगाबाद और अमरावती अजला के दफातर जल्द शुरू किए जाएंगे. ये ऐलान मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे ने किया है. रियासत महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अमरावती के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इलाकाई दफातर फौरी दोबारा सरगर्म अमल किए जा रहे हैं. इस तरह का ऐलान करते हुए मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में महाराष्ट्र में मज़ीद 2 इलाकाई दफातर यानी औरंगाबाद और अमरावती की खिदमात को बहाल किया जा रहा है. ये दोनों दफातर मराठवाड़ा और मगरबी विदर्भ के इलाकों में खिदमत देंगे, जिसके सबब इन दोनों इलाकों के किसान, अमूमी तकसीम से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग, समाजी खिदमतगार इदारों, सरकारी इदारों और सारिफीन को फ़ायदा पहुँचेगा. आया रहे कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ अनाज के कानून के तहत तमाम को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बहम पहुँचाने की सिमत में FCI का किरदार कलीदी अहमियत रखता है. वहीं मुल्क के किसानों की ज़रई पैदावार व ज़रई अमवाल की ख़रीदी के मामले में भी FCI एक काबिले एतमाद इदारा तस्लीम किया जाता है और मुल्क भर व रियासत महाराष्ट्र में बरसरेकार इसके दफातर इंतहाई मुस्तैदी से अपने कारोबार संभाले हुए हैं. मुल्क के आवाम के लिए मुसलसल सरगर्म अमल रहने वाले इस इदारे के तई दानवे ने एहसास तफाखुर का भी इजहार किया है. कोरोना से बचाव के टीके लगाने वालों की बढ़ती तादाद को देखते हुए तालुका सिल्लोड़ में मज़ीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं. शहर सिल्लोड़ में कोरोना की टीका अंदाजी यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जारी है, लेकिन यहाँ हो रही बेपनाह भीड़ को देखकर रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार गज़बनाक हो उठे और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों व अमले की खूब खबर ली. इस बेपनाह भीड़ पर काबू करने के मकसद से अब सिल्लोड़ के इस अस्पताल के अलावा शहर के छत्रपति शाहू महाराज और मौलाना आज़ाद हाल में भी वैक्सीन लगाने का नज़्म करने के अहकाम भी वज़ीर मौसूफ ने दिए हैं. इस तरह अब इन दोनों मकामात पर भी टीके लगवाए जाएंगे. दरियासना बतलाया गया है कि दोनों ही जगह ख़वातीन व मर्दों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन का नज़्म किया जाएगा. गुज़िश्ता रोज़ 10 मई को अब्दुल सत्तार ने जब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का
जाकर यहां जारी टीका अंदाजी का मायना किया था। इस मौके पर उन्होंने देखा कि अस्पताल इंतज़ामिया ने भीड़ न हो इस समत में कोई बेहतर इंतज़ाम न किए थे, जिस पर वो सख्त नाराज़ हुए और अस्पताल इंतज़ामिया को खूब खरी खरी सुनाई थी। बाद में उन्होंने सिल्लोड़ बल्दिया के दफ्तर पर एक हंगामी मीटिंग तलब की, जिसमें कई अफसरान के अलावा सदर बल्दिया राजश्री निकम, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, तहसीलदार विक्रम राजपूत, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर विजय मराठे, इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े, बीडीओ अशोक डांडगे, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोरे, तालुका हेल्थ ऑफिसर योगेश मराठे, बल्दिया के सीईओ असगर पठान व दीगर मौजूद थे। मौज़े अजंता के वो साकिनान जिन्होंने उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा ग्राम पंचायत टैक्स मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया है, उनमें ग्राम पंचायत इंतज़ामिया की जानिब से डस्टबिन मुफ्त तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि मौज़े अजंता के साकिनान में टैक्स अदा करने का रुझान बढ़ाने की गर्ज से मकामी ग्राम पंचायत इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ स्कीमात का ऐलान किया है, जिसके तहत वार्ड नंबर 1 और 3 के वो सभी साकिनान जिन्होंने उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा ग्राम पंचायत का टैक्स मुकम्मल अदा कर दिया है, उनमें डस्टबिन मुफ्त तकसीम किए गए। इस मौके पर सरपंच नज़ीर गाइड, ग्राम पंचायत रुकन आज़म पठान, ईश्वर माहूर, सचिन दसरे, दिलीप झलवार, दीपक झलवार, डॉक्टर भाऊ साहब सोड़ुंके, साजिद खान और दीगर मौजूद थे। सिडको N11 में मौजूद प्रमोद महाजन किरड़ा स्कूल के अहाते में बरसों से तामीर की जा रही पानी की टाकी का तामीरी काम फौरी मुकम्मल किया जाए, ये मुतालबा इलाके के साकिनान ने मुतल्लिका इंतज़ामिया से किया है। इस मामले में राजवानखेड़े ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से मुलाकात भी की थी और उन्हें तहरीरी दरखास्त पेश की थी। बताया जाता है कि इस मुंबई आब की तामीर से हडको इलाके के साकिनान को पानी फराहमी में बड़ी मदद हासिल होगी। अब दी गई मज़कूरा दरखास्त में इस अमर का भी जिक्र किया गया है कि इस टांकी के बन जाने से यहाँ के आवाम का पानी का मसला हल हो जाएगा। वादे-अज़ां म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर पांझड़े और MGP के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अजय सिंह ने फौरी N11 की इस अधूरी तामीर शुदा टाकी के काम का मायना किया और जल्द इस अधूरे काम को मुनहदिम करके नए सिरे से टांकी की तामीर का तयक्कुन दिलवाया है। शहर में कोरोना की लहर मांद पड़ने लगी है, लेकिन देही मकामात पर सूरत हाल अब भी तशवीशनाक बनी हुई है और आए दिन वहाँ कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने लगा है। इसी तरह महलूकीन की तादाद भी बढ़ने लगी है। ज़िला परिषद के शोबे सेहत से हासिल मालूमात के मुताबिक 10 मई तक मिले आदाद शुमार में देही इलाकों के मुतासरीन की तादाद 5207 तक जा पहुंची है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 11,718 मुतासरीन औरंगाबाद से हैं, जबकि गंगापुर तालुक़े में 8,706, वैजापुर में 8,430, पैठन में 7,041, कन्नड़ तालुक़े में 6,057, सिल्लोड़ में 3,959, फुलंबरी में 1,842, खुलदाबाद तालुक़े में 1,235 और सोएगांव तालुक़े में सबसे कम कोरोना मुतासरीन यानी 218 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों का इंदराज हुआ है। ज़िला भर में RT-PCR की टेस्टिंग बढ़ा दी गई तो पहले से मुतासरीन का खुलासा हो रहा है और अब तक 43,272 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इलाज, मुआलजे, जांच के लिए ज़िला परिषद का शोबा सेहत इंतहाई मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस तरह की जानकारी मज़कूरा शोबा सेहत से मिली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना की रोकथाम के पेश नजर पूरी रियासत में नाफिज कर्फ्यू और दीपा 144, इसलिए बंदगाने तौहीद सादगी से मनाएं ईद उल फित्र। खवातीन और बच्चे भी बाजार जाने से करें गुरेज, उलमा इकराम की अपील। कोरोना को मात देने वाले मरीज हो सकते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के शिकार, अलामा जाहिर होते ही करवा लें इलाज, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने दिया शहरियान को मशवरा। MLC अंबरदास दानवे की कोशिशों से बजाज नगर इलाके में नस्ब ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शानदार इफ्तिताह,
मगर सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू न होने से बीजेपी कायदीन नाराज। और कोरोना से बचाव के लिए जिले में जोरों शोर से जारी है वैक्सीनेशन मुहिम। अब तक कमोबेश 5 लाख शहरियान को लगा दिए गए टीके। म्युनिसिपल हुदूद के लिए भी मौसूल हो चुका है कोटा, मगर शहरियान न करे भीड़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।